So the basic difference between eNABH and main NABH is it has eNABH has 270 compliance points approximately, and main NABH has more than 500 points which we have to fulfill. The basic difference between main NABH and eNABH is eNABH focus only on documents, trainings, and licenses, while Okay, sir. main NABH additionally focus on infrastructure, and then safety, and you know, the data analysis, quality indicators and all. They are focusing on that. Okay, so Okay, sir. this is what is the basic difference between these two. Ultimately, the all things are going in same way. Now I'm going down where this is kind of a proposal which we give to hospital. Okay, sir. Ha, sir. So this proposal itself is everything where it will be very helpful for you to convince doctors, and this should be by heart. So you have to remember or you know, read it multiple times, so that Okay. because everything is given here. Okay, so Ha, sir. see now the how we are different from other consultancies. Okay, so we establish real-time customized system. Customized. Yes, sir. Huh. So customized means most of the time what happens, self-proclaimed consultants, for example, कोई बंदा होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है एक हॉस्पिटल में, एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर कोई नर्स होती है, राइट? Yes, sir. Huh. And then she get accustomed to the systems which are getting established over there. वहां पे जो भी सिस्टम होती है उसके पास वो सारी एसओपीज वगैरह वो फॉर्मेट आ जाते हैं, थोड़े बहुत, पूरे पूरे नहीं आते हैं. ओके, तो Ha, sir. Huh. ये फॉर्मेट चुरा कर शी विल जस्ट गो टू द न्यू हॉस्पिटल्स एंड बता देगी कि सर मेरे पास सिस्टम है, एंड वो क्या करेगी, वो सिर्फ लोगो बदलेगी, Okay, 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 okay. Ha, 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 ha. डॉक्यूमेंट का सिर्फ लोगो बदल देगी और बोलेगी, हॉस्पिटल का नाम बदल देगी और बोलेगी कि सर आपका सिस्टम सेट है, अभी पैसे दे दो. Okay. तो ऐसा हम नहीं करते हैं, वी कस्टमाइज. कस्टमाइज का मतलब है what we do is we give them guidance. We have a guidance, I'll share with you. Now you can see this. Deepa, can you see this? Yes, sir. Can you read out the names? What is this? AAC document. हाँ, so AAC is document. one of the access assessment and continuity of care का SOP का sample है. This is a sample. Yes, sir. Huh. This is not the final SOP of the hospital. People use this sample as final SOP of the hospital. They'll just change the name of the hospital, logo बदल देंगे और हो गया. वैसा नहीं होता है. Okay, okay, okay. Ha, sir. What we have done is we have converted this sample into customizable form. Okay. Huh. So I'm showing you this. One sec. Can you see this now? हाँ सर हाँ. तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में सैंपल है और राइट में प्लेन प्लेस है, प्लेन जगह है, क्लियर स्पेस. यू कैन सी दैट? यस सर हाँ. या तो ये फॉर्मेट विल बी प्रोवाइडेड
and then जो भी changes है that should be written with pen, pencil, whatever on the right side. Understand? Deepa? Hello? 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 हाँ दीपा, are you there? वीर जी नमस्कार. अनम्यूट करा तुम्हाला, अनम्यूट. दीपा, can you hear me? वीर जी अनम्यूट करा तुम्हाला. माझा आवाज येतोय? हॅलो. वीर जी अनम्यूट करा. माझा आवाज येतोय तुम्हाला? स्पीकरचं साइन असेल त्याला क्लिक करून अनम्यूट करा. नमस्कार वीर जी, आवाज येतोय का? आवाज येतोय? वीर साहेब आवाज येतोय का? हॅलो वीर साहेब. वीर साहेब आवाज येतोय? काय गडबड आहे यार. हॅलो. वीर साहेब आवाज येतोय का? हॅलो. हॅलो वीर साहेब. Hello. Is there any technical issue? It seems, right? You, connect again. No problem. Okay. Yeah.
वीर साहेब आवाज येतोय? हा, अहो तुमच्या मोबाईलवर आहे ना झूम ऍप सुरू केलं ना तुम्ही, तिथं ते स्पीकरचं साईन आहे, स्पीकर म्हणजे असं बोलण्याचं स्पीकरचं साईन आहे तिथं, किंवा म्यूट अनम्यूट असेल, अनम्यूट असा शब्द असेल. हा, नाही 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 नाही, टच करायचं, खाली टच केल्यावर येतं, खालच्या साईडला टच करायचं. हा, खालच्या साईडला टच केलं ना बोट की ते येतं, ते आलं की तिथं अनम्यूट करा. हा, अनम्यूट. ओके, क्लिक करा त्याला. हा हा. हॅलो, आवाज येतोय? कितीतरी लोकांना अजून झूम मीटिंग पण माहिती नाही, काय करावं. हा, येतोय का आवाज? येस, बोला आता. हॅलो, हा अनम्यूट करा तुम्हाला. हा, आता येतो सर. हो हो हा, येस, आता आवाज यायला लागलाय. हा, हो हो हो. ओके ओके. अजून एक दिल्लीची दीपा म्हणून आहे, ती पण जॉईन करतीये. ओके ओके सर. तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसतीये काही? हो सर, हो सर, दिसते स्क्रीन. हा हा हा. तर आपलं Yes. जे कोटेशन फॉर्मॅट आहे हो. तो असा आहे, बरोबर आहे की नाही? हे कोटेशन फॉर्मॅट आहे आपला. ओके. मध्ये आपण सगळ्या स्टेप्स दिलेल्या आहेत, तुम्हाला माहितच आहे. हो 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 सर, माहिती आहे माहिती. हा, व्हिजिटला आम्ही पहिल्या दिवशी, 8व्या दिवशी असं काय काय संपवू हे सगळं दिलेलं हो हो आहे. हे त्यांना आपण वाचून दाखवणे, आणि ऍडिशनली आपण आता काय ह्या स्टेप्स बरोबरच आपले स्टँडर्ड रेट पण दिलेले आहेत. ओके सर. स्टँडर्ड रेट म्हणजे एवढे आमचे स्टँडर्ड रेट आहेत, मग आपण निगोशिएट करू, आहे का नाही? चालेल सर, चालेल चालेल आमचे चालेल. सुरुवातीचे स्टँडर्ड रेट आहेत, या रेट नंतर मग बघू आपण कसं करायचं, काय असं आपला हिशोब आहे, ते दिलेलं आहे. हो हो हो. आणि हे एक नवीन सुरू केलंय आपण याच्यामध्ये. बघा, कुठल्या डेटला किती पैसे देणार हे आपण आधीच ठरवतो अग्रीमेंटच्या वेळीच. राईट सर, राईट राईट. बघा, त्या अग्रीमेंटच्या वेळीच ऍडव्हान्स किती देणार, पहिला 10, 30, 30, 10 कधी कधी पैसे देणार, है ना? आणि मग डॉक्टर येस. अजून एक पुढे आता लिहिलेलं इथं. कधी कधी काय होतं, डॉक्टरला वाटतं की बाबा ऍप्लिकेशनचे पैसे आपणच देणार का? नाही. तर एनएबीएच ऍप्लिकेशन इज नॉट इन्क्लुडेड इन ट्रेन हॉर्स प्राइस. ओके ओके. हा हा हा. बरोबर आहे की नाही? हे आपण त्यात सगळं, बरोबर. म्हणजे महत्वाचं काय, आता हे तुम्हाला वाचणं फार महत्वाचं. हे हा वाचून तुमचं पाठ झालं एकदा की मग हा. डॉक्टरला डायरेक्ट कन्वर्ट करू शकता तुम्ही तुमच्या लेवलवर. येस सर, येस. चालेल. ओके. आणि हो. खाली जर गेलो आपण, तर आपण ऍप्लिकेशनचं प्राइस किती आहे सर? काय म्हटले? ऍप्लिकेशनचं जे एनीबेस ऍप्लिकेशन प्राइस आहे ना, हा, ते किती असू शकते? नाही नाही, त्याचा डायरेक्ट डॉक्युमेंटच अवेलेबल आहे. अच्छा. त्याची फीज अवेलेबल आहे, मी तुम्हाला ती दाखवतो. एक हा. मिनिट, ते लगेच पाठवून टाक.
सर्च केलं ना गुगलवर की दिसतंय हा हे बा ओके NABH फीज फॉर ऑल प्रोग्राम. हे बा सगळ्या हॉस्पिटलची इथं फीज लिहिलेली त्यांनी. आहे का अप टू 100 बेड्स 40,000, अॅन्युअल फी 1,65,000, व्हर्च्युअल असेसमेंट 3 प्लस GST 18%. आहे का नाही. तेच तुम्ही इकडे डाऊन मागे आला हॉस्पिटल अक्रेडिटेशन प्रोग्राम मध्ये 50 बेड 25,000. आहे का नाही. हो हो सर हो. सर्जरीनुसार पण आहे. सर्जिकल साठी लेस दॅन 500 सर्जरी असतील तर फक्त 10,000 पर ॲनम. ते सगळं दिलेलं आहे याच्यामध्ये. हा हे त्यांना आपण देऊ शकतो बाय डिफॉल्ट प्रिंट करून. प्रिंट करायची सॉफ्ट कॉपी आपण त्यांना पाठवू शकतो. हीच चालतंय ना सर चालतंय. ही रेडी आहे आपल्या गुगलवर मिळते. गुगलवर सर्च केलं ना NABH फीज ऍप्लिकेशन फीज येऊन जातं. राईट सर राईट. NABH ऍप्लिकेशन फीज सर्च केलं मी आणि मला लगेच पहिलं डॉक्युमेंट मिळालं. राईट सर राईट राईट राईट. हे डाउनलोड होतं. म्हणजे ऍप्लिकेशन फी ते हॉस्पिटलने भरायला पाहिजे. हा ते हॉस्पिटलकडे आहे. अच्छा अच्छा ओके हा. तर हे पॉइंट आपण याच्यामध्ये दिलेले आहेत. जसं जसं आपल्याला अनुभव आला व्हॉट्सअप दिस इज अ टेम्पररी ग्रुप. जोपर्यंत आपण प्रोसेस कंप्लीट करत नाही. ओके ओके. आपण एव्हरी मंथ आपण त्यांना ईमेल पाठवू काय स्टेटस आहे, कुठं काही प्रॉब्लेम आहे, तुमच्या लेवलला प्रॉब्लेम आहे, आपल्या लेवलला प्रॉब्लेम आहे. असं ते आता मध्ये आपल्या पंढरपूरच्या हॉस्पिटलला हे झालं नाही म्हणून आपण हे सुरू केलं आता. असं पॉइंट दिलेले ते सगळे वाचणं फार महत्वाचं आहे, समजून घेणं महत्वाचं आहे. तेच मी सांगणार आहे आज सगळं. 1 मिनिट ती जॉईन होऊ आपण 2 मिनिटात. हेच मी सांगणार आहे आज डिटेल. अच्छा ओके 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 ओके. कारण हे कळालं ही पहिली स्टेप आहे. हेच जर कळालं नाही तर पुढे काय जाऊन फायदा. बरोबर ना सर. असं ठीक आहे. हा ओके सर. हा आता याच्यामध्ये आपण दिलेलं आहे की सर पहिल्या दिवशी आम्ही काय करणार, अग्रीमेंट करणार बरोबर, आणि गॅप अनालिसिस काढणार. दुसऱ्या 8 दिवसात आता एक तर आपण काय करतो 2 लेवल तुम्हाला माहिती आहे सलग 4 दिवस जातो. हो बरोबर आहे. एखाद्या ठिकाणी युजली आता आपण ठरवलंच आहे की सलग 4 दिवस जातो आपण ते संपून टाकतो. काय होतं दर आठवड्याला आपले जाण्या येण्याचे पैसे वाचतात. बरोबर ना सर. सलग 4 दिवस जातो. सांगायचं की तुम्ही आमच्या राहण्याची व्यवस्था करा, आमचा माणूस येईल 4 दिवस थांबेल आणि हे टार्गेट संपवून टाकेल. हे झाले पहिली व्हिजिट आहे का नाही, म्हणजे 4 दिवसांची. राईट 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 राईट. मग दुसरे 4 दिवस मध्ये हे संपून टाकेल. दुसरे 4 दिवस म्हणजे ऍडव्हान्स दिल्यानंतर हे 10% तुम्हाला आम्हाला द्यायचे पुढच्या महिन्यात. तिसऱ्या महिन्यातले 4 दिवस तर फी काही नाहीये बरोबर. आणि मग चौथ्या महिन्यामध्ये तुम्हाला आम्ही 4 ते 8 दिवस देऊ बरोबर. हा आणि मग तुमचे 30% आम्हाला येतील. आणि मग 5व्या महिन्यात आपण ऍप्लिकेशन करू. ऍप्लिकेशन करून सगळं प्रॉब्लेम सोडवू आणि मग मेन ऍप्लिकेशन मग मेन ऑडिट साठी 4 दिवस आधी येऊ आणि सगळी तयारी करून ठेवू बरोबर. आणि सर्टिफिकेट आल्यावर तुम्ही आम्हाला 10% द्या. असं सगळं ते आहे. ओके 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 ओके. आणि आता हे आपले हॉस्पिटल बेड प्रमाणे आपले रेट्स ठरलेले आहेत. त्याला आपण थ्रोईंग कॉस्ट. समजा हॉस्पिटल अप टू 30 बेड्स ENABH करायचे तर 150 आपण सांगतो. 31 50 बेड 170 सांगतो. 50 पेक्षा जास्त 100 पर्यंत 2,50,000. 101 ते 500 4.5 लाख रुपये. 501 ते 1000 बेड 5,50,000 आणि 1000 पेक्षा जास्त असतील तर 7.5 लाख रुपये आपण कॉस्ट सांगतो. यातले आपण ते जास्त
जर ते कॅश देणार असतील तर 20% 25% डिस्काउंट देऊ शकतो. पण कॅश देणार असतील तर मग उदाहरणार्थ ओके 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 डिस्काउंट जर आपण 1,50,000 ला दिला तर 25 अधिक 12.5 म्हणजे 1,10,000 कॅश मध्ये करू शकतो आपण. अच्छा 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 बरोबर. हम्म. नाहीतर Okay, sir. म्हणजे त्यांना म्हणू शकतो की सर जीएसटी जर असेल तर एवढी याच्यापेक्षा कमी येऊ शकत नाही आम्ही. ओके चालेल चालेल. कारण आमचं जीएसटी 18% जातो प्लस 10% टीडीएस तुम्ही डिडक्ट करता. हो, पैसे बरोबर ना. आपल्याला पैसे हम्म. 10% डिडक्ट करतात आपल्या पॅन कार्डवर. तर त्याच्यात आमचं 30% नुकसान होतं. जर आम्ही 1 लाखात केलं विदाऊट जीएसटी आमचं नुकसान होऊन जातं, आम्हाला काहीच राहत नाही है ना. बरोबर ना sir. तर त्या लेवलवर हे आहे. आणि याच्यामध्ये आपण ट्रॅव्हल आणि स्टे एक्स्ट्रा आहे. ते एक्स्ट्रा आहे. हो हा आमचा माणूस जेव्हा येणार आहे तो बसने आला बरोबर. ट्रेनने आला तर बस आणि ट्रेनचा हो. फेअर तुम्ही द्यायचंय. कदाचित आम्ही विमानात तो भाग वेगळा, पण तुम्ही देताना आम्हाला बस किंवा ट्रेनचं ऍक्च्युअल तिकीट द्या. ओके सर चालेल. खाणं आणि राहणं करा हम्म. ते एक्स्ट्रा. ओके. येस सर. आता एक्स्ट्रा मध्ये काय काय आलं बघा. एक्स्ट्रा मध्ये ऍप्लिकेशन फीज वेगळी आली, वेगळं हा. ट्रॅव्हल अँड स्टे वेगळा आला. हम्म. त्याच्यानंतर सायनेजेस म्हणजे जे बोर्ड बीट होतात ना तिथं आत कंपनी हो. ते वेगळे येणार. आणि थोडंफार काही क्लीनलीनेस वगैरे रंगरंगोटी असेल रिनोव्हेशन असेल तर ते पण तुम्हाला सध्या कोरोनामुळे ते मोबाईलवरच ऑडिट घेतायत. पण उद्या जेव्हा ते ऑन साईट येतील तेव्हा त्यांचा ऑडिटरचा ट्रॅव्हल आणि राहणं ते पण एक्स्ट्रा आहे. ते डॉक्टरला ऑडिटरनं मग विमानाने येईल त्याच्यात कुठं आहे काय त्याच्या हिशोबाने ते आपल्याला खर्च करावा लागतो. ओके. या लेवलवर हे रेट्स दिलेले आहेत. आणि मग त्यांच्या बरोबर निगोशिएट होऊन जो काही रेट फायनल होईल तो आपण इथं लिहू शकतो. बरोबर. मग प्लस जीएसटी एक्सक्लुडिंग जीएसटी आहे. ट्रॅव्हल एखादा म्हणतो इथे तुमचा इथंच आहे माणूस कशाला ट्रॅव्हल, त्याप्रमाणे ते पॉइंट आहेत. आणि मग एकदा ते साईन झाले की मग त्यांना म्हणायचं सर तुमचं काम या दिवशी सुरू होत आहे, या दिवशी आम्हाला ऍडव्हान्स लागेल एवढा, नंतर मग वरच्या इथं दिल्याप्रमाणे 10% ती स्टेज संपली की है ना तसं तुम्ही आम्हाला द्या. बघ 10% इथे येणार, 30% इथे येणार, 40 झाले, 70 झाले आणि 80 आणि 20% ऍडव्हान्स दिलेला आहे आपण. ओके. 20% ऍडव्हान्स आहे ना. मग 1 लाखाला ठरलं तर 20,000 रुपये ऍडव्हान्स मिळाल्याशिवाय काम सुरू करायचं नाही. येस दीपा, हॅव यू? हाँ यस सर. या ओके. सो हम यहाँ पर थे. ये जो है ये स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन का मैं यहाँ पे था कस्टमाइज पे. हाँ सर हाँ. कस्टमाइज सिस्टम्स. बाकी के लोग क्या करेंगे, जो भी सैंपल एसओपीज अवेलेबल है वो सैंपल एसओपीज को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे. हमारे पास वैसा नहीं है. हमारे पास एक फॉर्मेट है जहां पे लेफ्ट साइड पे सैंपल एसओपी होती है और राइट पे जगह है जहां पे आप करेक्शंस करो तो हम फाइनल एसओपी बना के आपको भेज देंगे. ओके सर हाँ. तो ये हम अलग है, इस तरीके से हम अलग है, कस्टमाइज एसओपीज बनाते हैं. उसके बाद ईएनएबीएस लेवल जब हम एक्रेडिटेट करते हैं तो सिर्फ ईएनएबीएस नहीं, एनएबीएस लेवल पे हम वैलिडेट करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा देते हैं आपको. जैसे कि ईएनएबीएच लेवल पे 20-30 फॉर्म काफी है. हाँ सर. लेकिन मेन एनएबीएच पे लेवल पे देयर आर अराउंड 50 फॉर्म्स. ओके ओके. वो सारे फॉर्म हम दे देते हैं उनको. ओके ओके. हाँ. तो नेक्स्ट टाइम अगर उनको ईएनएबीएच एंट्री लेवल से मेन एनएबीएच के लिए जाना है तो इट इज परफेक्टली गुड फॉर देम. ओके सर. हाँ सर. हाँ. We depute physical presence of experienced healthcare executive का मतलब क्या है, राइट? फिजिकल प्रेजेंस मतलब क्या है कि काफी सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं
उनको एक लिस्ट देते हैं, ये बना के रखो, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो आप रेडी चाहिए। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। तो जिसको ये डेलीगेट किया है, जिसको बताया, उसको पता ही नहीं है कैसे बनाना है। हाँ सर, हाँ। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, उनको रजिस्टर की लिस्ट देते हैं, रजिस्टर की लिस्ट को कॉलम हेडिंग देते हैं, जैसे कि ये है एग्जाम्पल उसका। ये ऐसा फॉर्मेट होता है रजिस्टर का, देख रहे हो आप? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो ये रजिस्टर का नाम है और उसमें ये कॉलम है, उस रजिस्टर में ये कॉलम होने चाहिए, डेट, टाइम, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, ये हम उनको दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम आप रजिस्टर बना दो। ओके ओके, डिफरेंट रजिस्टर डाटा कैप्टन द हॉस्पिटल उसके ऐसा बनाया जाता है वो, हाँ वो हमें कॉलम बताएंगे हेडिंग लोग। हाँ, लेकिन अच्छा, लेकिन अच्छा, हम बाकी के कंसल्टेंट क्या करेंगे, ये उनको दे देंगे और बोलेंगे आप बना के रखो, नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं। राइट राइट, हाँ। तो यहाँ पे हम वैसा नहीं करते हैं, ओके हम जाके खुद रजिस्टर बनाते हैं। ओके सर, हाँ। वी विल गो एंड वी विल मेक इट, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो बंदा को पता नहीं है कैसे बनाना है। ओके सर, हाँ। तो दिस इज आवर स्पेशलिटी। ये रजिस्टर फॉर्मेट तो हमारे पास है, लेकिन हम खुद बनाते हैं वहां पे जाके। हाँ सर, हाँ। तो क्योंकि कॉलम का लेंथ कितना होना चाहिए ये पता नहीं होता उनको, डेट के लिए छोटा होना चाहिए, पेशेंट के नाम के लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कोई डिस्क्रिप्शन हो तो और बड़ा होना चाहिए, बराबर। हाँ सर, हाँ सर। तो वी आर ट्रेन्ड, सो वी डू इट आवरसेल्फ। हम उनको कोई भी काम बताते नहीं है। ओके 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 सर, हम यस सर। हम वो हॉस्पिटल हमारा है ऐसा कंसिडर करके वहां खुद काम करते हैं, खुद रजिस्टर पे लाइन मारेंगे, वहां पे नाम दे देंगे, सब कुछ हम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ओके सर, मोटिवेट करेंगे, राइट। हाँ हाँ हाँ, तो वी डू दिस ऑन आवर लेवल, अंडरस्टैंड। यस सर। दैट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस का मतलब नहीं है कि विजिट देंगे और उनको काम देके निकल आएंगे, फिर 8 दिन बाद गए तो कुछ नहीं काम हुआ होगा, एंड देन यू विल कॉल मी और बोलोगे कि सर उनका वो तो काम ही नहीं करते। बराबर बराबर सर, हाँ। हाँ, वैसा नहीं हम करते हैं। व्हाट वी डू इज वी डू आवरसेल्व्स, वी अचीव द टाइमलाइंस, हमारी तरफ से हम कुछ नहीं रखते, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ। हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि एक प्रिंट, एक स्टैंड बाय कार्ट्रिज और A4 साइज का पेपर का 2 बंडल्स रेडी रखें हमेशा, हाँ 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 सो दैट, और एक डेस्कटॉप हमें दे दीजिए, वी विल गो, वी विल डू, सब हम करेंगे, प्रिंट हम करेंगे, फाइल करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, राइट। हाँ सर। Yeah. And additionally, we are the only company in India which provides innovative hospital improvement program. ओके सर, यस सर। Hospital improvement program is nothing but additional training होते हैं। NABH के तो कुछ ट्रेनिंग कंपलसरी होते ही है, हाँ हाँ, लेकिन there are additional trainings like communication skills or how to you know, think quality, what is the value of corrective preventive actions, मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी चाहिए, अंडरस्टैंड। हाँ सर, हाँ सर। तो ये सारे ट्रेनिंग हम देते हैं, एंड द एडवांटेज इज दीज ऑल ट्रेनिंग आर जस्ट, आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है ओके ऑनलाइन में, वी हैव आवर ओन ऐप, दिस इज राइट, ट्रेनहॉस ऐप। ओके ओके, हाँ, आई विल शो यू दैट, वन सेक। वीरजी, तुमचा व्हिडिओ बंद करू शकता तुम्ही, ऐकायला दिसायला पण मिळेल, व्हिडिओची गरज नाही। Yes, yes, yes. On TrainHorse, on Google Play Store, you should search TrainHorse.
So you will find the app here. You are seeing app, Deepa? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you should click that app and install. Okay, sir. हाँ. The moment you will install, what we'll do is एक hospital का एक school बनाते हैं. हाँ, sir. One hospital will be one school. उस स्कूल में Yes, yes. हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज को स्टूडेंट की तरह एडमिट करते हैं. Okay. And then we can conduct online trainings. There are already ready-made trainings which can be seen by them at any point of time. Okay. They have to do the assessment. Assessment का मतलब है उनका क्वेश्चन पेपर होगा, उसको उनको सॉल्व करना पड़ेगा. Okay, okay. And the moment they will score more than 60%, they will receive Yes. international certification Okay, okay, okay. हाँ. by US Higher Learning Board for Education. Okay, okay. Yes, sir. So this is what is very different with us. Nobody has this Okay, sir. हाँ. because hospital में training है, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, ट्रेनिंग हुआ कि नहीं, प्रॉपर नहीं होता है, सर्टिफिकेट नहीं होता है. अच्छा, अच्छा. Yes, sir. Yes. बट हमारे साथ जो हॉस्पिटल जुड़ेंगे, they will have this and this will be lifetime. It is free. Okay, okay. हाँ. And sir, मेरा I just wanted to ask like ये तो हो जाएगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बट जब भी इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तभी ये लोग आंसर कर पाएंगे क्या लोग को? हाँ, हम ट्रेनिंग ही वैसा देते हैं ना उनको. दोनों लेवल की ट्रेनिंग होती है ना. ये तो ऑनलाइन हो गया, राइट? हाँ. ऑन साइट भी NABH मैंडेटरी वाला ट्रेनिंग ऑन साइट भी तो देंगे हम उनको. हाथ कैसे धोएंगे, हाउ टू वॉश हैंड्स एंड ऑल. ओके, ओके, ओके. हाँ. और हाँ, सर तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं NABH वाले लोग पूछते हैं, किस किस का क्वेश्चन के आंसर्स भी नहीं पता चलते हैं, तो उस समय क्या करने का? नहीं, वैसा नहीं होता है. वी हैव द क्वेश्चन बैंक, वी हैव द लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग्स. वो ट्रेनिंग लेने के बाद दे कैन आंसर एवरीथिंग. Okay, okay. So what are the questions commonly asked by NABH जैसा? हाँ, we have that FAQs. वो सारे इस ट्रेनिंग में कवर्ड है. मतलब मेरा सर आई वांटेड टू से लाइक हम लोग ने ट्रेन तो किया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस देना चाहिए कि बाद में फिर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये लोग पूछेंगे तो ये लोग को आना चाहिए. बाद में फिर हम लोग ने इतना ट्रेन करके फिर लोग कुछ बोले नहीं, फिर उसका मतलब मेहनत का नहीं, वो कुछ तो होता फायदा है. नहीं होता. सी वैसा ही होता है ना. टीचर गिव्स ट्रेनिंग. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू लर्न. ओके, ओके. हाँ सर. हाँ, तो स्टूडेंट ने लर्न नहीं किया तो इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन. ओके, ओके, ओके. अंडरस्टैंड. वी विल हैव 2 रिविजन्स. मतलब एक बार ट्रेनिंग करके दूसरा रिवीजन भी करते हैं. वी विल शो यू. या तो ये प्रपोजल में इफ यू सी हियर 4 दिन है. देखो आपने 4 दिन देखा है, दिख रहे हैं, राइट? यस सर. या तो इन 4 दिन में वी ट्रेन देम. देखो, विथ एडिक्वेट ट्रेनिंग, है ना. 4 दिन में हाँ सर. train them on basic topics like code blue, code pink, code red, fire exit, CPR, cardiopulmonary resuscitation. सारे ट्रेनिंग जो मैंडेटरी बाय NABH है वो हम सब दे देते हैं उनको. We have the material available for this. We have proper presentations available. और ये सारे trainings will be available on the app also. ओके सर. हाँ. Okay. हम्म. देखो, then we again 4 days we are responsible for all critical training records evaluation. So we will evaluate them, right? यस सर. यस सर. तो हम उनको चेक भी करेंगे कि क्या वो आंसर कर पा रहे हैं, कौन आंसर कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, राइट? ओके. हाँ, हाँ. या सो ये सारी स्टेप्स है. दीज आर ऑल द विजिट्स. जैसे कि देखो आप, 4 दिन के कंटिन्यूअस विजिट्स का हमारा आइडियल प्लान है. हाँ सर. हाँ. तो आवर पर्सन गोज फॉर 4 days कंटिन्यूअसली. अब Yes. आपके लिए इनिशियली इट विल बी 2 days, सैटरडे संडे एंड देन अगेन सैटरडे संडे, राइट? ओके सर. हाँ. 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 तो इस तरीके से अभी काम करते वक्त यू कैन हैंडल ओनली 2 हॉस्पिटल्स. ओके सर. हाँ. अंडरस्टैंड? हाँ सर. हाँ. हाँ. अब नेक्स्ट इज सो ऐसी 4 दिन की वी हैव अराउंड 5 विजिट्स.
for 5 months. Yes sir, हाँ. And then we'll apply for desktop audit. Then we'll give 6th visit on after audit, desktop audit. And desktop के बाद desktop audit you know right? What sir? Desktop audit क्या है? List of audit. डेस्कटॉप ऑडिट का मतलब है ये सारे रिकॉर्ड जो हम बनाते हैं हम वो अपलोड करते हैं NABH की वेबसाइट पर. Okay sir, okay. और हाँ. फिर NABH अथॉरिटी विल रिव्यू इट ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ. जो भी हमने डेटा उनके पास भेजा है वो सारा देखेंगे, सारे फोटोग्राफ्स ऑफ द हॉस्पिटल, SOPs ऑफ द हॉस्पिटल, सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, ट्रेनिंग रिकॉर्ड है क्या, लाइसेंसेस है क्या. एंड इफ दे फाइंड इट ओके दे विल क्लियर द ऑडिट. हाँ sir. And then they'll call us or call hospital to come on for on-site audit, main audit. Okay sir. तो logically NABH के हिसाब से there are 2 audits. पहला ऑडिट ऑनलाइन होता है, जो भी डेटा हम बेचते हैं वो रिव्यू करते हैं, और दूसरा ऑन साइट होता है, एक्चुअल हॉस्पिटल में आके दे विल वेरीफाई कि वही डॉक्यूमेंट है क्या और वो सही है क्या सब. हाँ सर, हाँ. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड ये हमारा है स्टैंडर्ड प्राइसिंग. हाँ सर. This is our standard pricing for our services. Okay. For example, if the hospital is less than 30 beds, then we charge 1,50,000 for eNABH. Okay sir, हाँ. सेम हॉस्पिटल को 2 साल बाद रिन्यूअल के लिए जाना है तो we charge 50,000. Okay. eNABH to main NABH के लिए जाना है हाँ. तो we charge 70,000. Okay sir, हाँ. But only for those who are our existing clients. Yes sir, हाँ. लेकिन अगर किसी ने eNABH दूसरे से करवाया है हाँ. और मेन NABH के लिए जाना है तो वी विल चार्ज. ओके. हेलो. हाँ, तो हम 50 चार्ज करेंगे. ठीक है. 50,000. ओके. हाँ. 1,50,000. हाँ. ओके. सो चार्जेस उस तरीके से लिए हैं. एंड आइडियली ये सारा आई एम सेंडिंग यू दिस, सारा आपको बाय हार्ट चाहिए. ओके सर. सो दैट आप ठीक से डॉक्टर के साथ बात कर सकती हो. हाँ सर, हाँ. एडिशनली जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है हमारा, तो उसमें हम कम्युनिकेशन एंड एटिकेट्स, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इंप्रूवमेंट एंड लीडरशिप पे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स देते हैं. ओके सर. या और जब डॉक्टर इज कन्विंस्ड कि चलो ये में आप कर लो, राइट, तो ये जो है दी चार्जेस आर इंक्लूडिंग ट्रैवल एंड स्टे. हाँ सर. ट्रैवल एंड स्टे एज एक्चुअल हॉस्पिटल हैज टू पे. जैसे कि दिल्ली में ओके सर. आप लिया जो 15 किलोमीटर दूर है आपके घर से, हाँ. एंड हॉस्पिटल इज रेडी कि 4 कंटिन्यूअस दिन आपको वो स्टे का अरेंजमेंट करेंगे, फूड का अरेंजमेंट करेंगे. तो जाने के लिए आपको वंस आप जा रही हो तो 15 किलोमीटर का जो फेयर होगा या ट्रेन का फेयर होगा, एंड आते वक्त जो भी फेयर होगा वो उनको देना पड़ेगा. ओके. सो दीज चार्जेस विल नॉट इंक्लूड ट्रैवल एंड स्टे. ओके सर, हाँ. एडिशनली ऐसे कौन से चार्जेस है जो हॉस्पिटल को देने पड़ते हैं? नंबर 1, NABH का एप्लीकेशन फीस जो होता है अप्लाई करने के लिए, जो NABH अथॉरिटी को ही जाता है, हाँ. वो फीस अलग रहती है. हाँ सर, हाँ. उसके बाद साइनेजेस वगैरह जो बोर्ड्स डिस्प्ले जो भी करेंगे वो फीस अलग रहती है. ओके सर, हाँ. सर साइनेजेस क्या है? साइनेजेस का मतलब है आपके सारे टॉयलेट का नाम लिखा हुआ बोर्ड, अच्छा, विजुअल. ड्रिंकिंग वाटर, डायरेक्शन, फायर एग्जिट्स, विजन, मिशन, आपकी सर्विसेज, डिस्प्ले बोर्ड्स मैंडेटरी बाय NABH.
ओके, ओके ओके ओके, उसका कॉस्ट अलग होता है. फाइन. हाँ हाँ. सर ते नवीन आहेत का सर? काय? हा, आता दिल्लीला. हो हो. अच्छा अच्छा. पण सगळं आता मला त्यांचं माहिती कसं आहे, आहे. त्यांचं कसं आहे की त्या सेल्स पण करणार आहेत आणि ऑपरेशन्स पण करणार आहेत. अच्छा अच्छा अच्छा, दोन जण. दोन्ही करणार. हा, ते जर आपण आता थोडं वेगळं करायला लागलो. हा, चालेल. देन दीपा, उसके बाद हम एडवांस लेते हैं 20%, जो भी अमाउंट आती है, हाँ सर. और उसके बाद हमने स्लैब डाले 10%, 30%, 30% और 10%. जो फाइनल 10% है वो सर्टिफिकेट आने के बाद, ओके सर, हाँ हाँ हाँ. और बीच वाले जो है वो आपको ऊपर दिख जाएगा. ये जो हमने विजिट्स किए, पहली विजिट को हम एडवांस लेंगे 20%, राइट. यस सर, हाँ. उसके बाद सेकंड विजिट को ये खत्म करने के बाद हम 10% लेंगे. हाँ सर. फिर थर्ड विजिट कुछ नहीं है. फिर फोर्थ विजिट जो है, तब हम ये खत्म करने के बाद जो है ऑल रिक्वायर्ड एसओपीज एंड टारगेट्स 30 लेंगे. जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, ऑनलाइन डेटा अपलोड करेंगे, तब हम 50% लेंगे. अंडरस्टूड? ओके सर, हाँ. हाँ, और फाइनल सर्टिफिकेट आने के बाद 10%. ठीक है, हाँ सर, हाँ. तो ये अप्रोक्सीमेट डेट हम यहाँ पे डाल देंगे हाँ सर, हाँ हाँ हाँ. ऑफ द हॉस्पिटल. होता यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम काम शुरू करने के बाद एडवांस तो दे देते हैं, Okay. लेकिन बाद में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करते हैं. पैसा देते नहीं है टाइम पे. तो इसलिए हमने ये स्लॉट ऐसे बनाए हैं. और जब भी ये काम आपका खत्म होगा, जैसे कि ये काम आपका खत्म हुआ, हाँ सर, हाँ. ओके, हाँ हाँ. तो हम यहीं पे उनका सिग्नेचर ले लेंगे कि ये काम खत्म हुआ है. ओके सर, सिग्नेचर किधर है? इधर यहाँ पे कहीं पे भी ले लो, कॉस्ट लैब में. अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ सर, हाँ. हाँ, डन, रिव्यूड, चेक बाय ऐसा करके साइन ले लो, तो सो दैट आप डिमांड कर सकती हो कि वी नीड मनी ऑन टाइम, हमने काम खत्म किया टाइम पे. हाँ सर, हाँ. डेट एंड टाइम में सर, हाँ, डेट भी बराबर. लिखने बोलते हैं लोग. हाँ, यस यस यस. देन उनका साइन होता है एग्रीमेंट के हिसाब से, राइट. हाँ सर, हाँ हाँ. This kind of must read, understand and agree. These are some points which are mentioned here. सबसे पहला पॉइंट, लाइसेंसेस जो होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फायर एनओसी, बायोमेडिकल वेस्ट का लाइसेंस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल. यस यस, हाँ. कभी कभी क्या होता है, व्हेन वी स्टार्ट एनएबीएच और हम बोलते हैं उनको कि सर ये लाइसेंस जरूरी है, तो वो कहते हैं कि अभी आप नहीं, आप ही देखो. ओके ओके ओके, तो वो हमारा नहीं है, वो उनका है. हाँ, जो भी वो लाइसेंसेस है, so that is responsibility of the hospital. Trenhouse would not be responsible for getting these compliance ready, because ये सारे लाइसेंसेस गवर्नमेंट के होने के कारण वहां पे काफी सारा पैसा टेबल के नीचे से भी देना पड़ता है. ओके ओके, हाँ हाँ हाँ. अंडरस्टूड? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ. एनएबीएच एप्लीकेशन फी जो एनएबीएच अथॉरिटी के लिए जाती है, we will not pay that. आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी वो, है ना. ओके सर, हाँ हाँ. एक्सेसर्स ट्रेवल्स एंड स्टे, जो भी ऑन साइट ऑडिट के लिए आएंगे एक्सेसर्स, उनका भी आपको खर्चा करना पड़ेगा. ओके ओके, हाँ. साइनेज एंड स्टेशनरी, साइनेज में डिस्प्ले बोर्ड्स और स्टेशनरी में रजिस्टर्स, फॉर्म, फॉर्मेट्स का प्रिंटिंग आपको खर्चा करना पड़ेगा. हाँ हाँ. माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस, कभी कभी थोड़ा बहुत दरवाजा खराब है, स्टॉपर लगाओ, कुछ ना कुछ छोटे बहुत चेंजेस होते हैं. ओके, वी डोंट हम उनको बहुत ज्यादा चेंज करने के लिए नहीं बोलते, थोड़ा बहुत बताते हैं. जैसे ऑपरेशन थिएटर में कभी कभी टाइल्स होती है नीचे और ऊपर भी, तो नीचे इपॉक्सी कोटिंग चाहिए होता है और वॉल्स को पॉलीयूरिथेन कोटिंग की जरूरत होती है, उसका खर्चा 75,000 से 1.5 लाख तक आता है, तो वो हम बताएंगे. बट माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस माइट बी रिक्वायर्ड, मतलब जरूरी हो सकती है. नहीं तो आप ये चेंजेस नहीं करना है, फिर भी आप करवा दो कुछ भी करके, वैसा नहीं होगा.
ओके ओके हाँ सर। प्रिंटिंग ऑफ क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करने वाले हैं, एसओपीज, फॉर्म्स, फॉर्मेट्स, है ना, हाँ सर। वो आपके हॉस्पिटल के प्रिंटर पे ही होगा। आप ये नहीं बताओगे कि आप घर से प्रिंट करके लेके आओ। ओके ओके सर हाँ। अंडरस्टैंड? हाँ बिकॉज सर। ये एक्सपीरियंसेस हमें आए दीपा, ओके जब हमने कहा कि आपका प्रिंटर कहाँ है, बोले प्रिंटर की क्या जरूरत है, आप ही बना के लाओ, प्रिंट करके लाओ बाहर से। ओके सर हाँ। तो वो इट इज वेरी कॉस्टली, राइट? हाँ सर हाँ। हाँ। और सर ये लाइसेंसिंग तो वो ये डॉक्टर जी जो डॉक्टर उधर रहते हैं वो करते हैं ना हॉस्पिटल का सब हाँ, वही लाइसेंस। ओनर ऑफ द हॉस्पिटल करता है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। अभी नॉन कन्फॉर्मिटीज मतलब जो भी एक्सेसर आते हैं वो बताते हैं ये कम है, वो कम है, ये रजिस्टर में ये कॉलम नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इधर ये इशू है, इसको हम नॉन कन्फॉर्मिटीज बोलते हैं, राइट? हाँ सर हाँ। एनसीज और नॉन कन्फॉर्मिटीज, जो ऑडिटर कहता है कि ये कम है, इसको आपको कॉम्प्लायंस नहीं है, राइट? ओके ओके हाँ हाँ हाँ। डाटा नोन एज नॉन कन्फॉर्मिटीज। तो कभी क्या होता है कि एक्सेसर स्पेसिफिक होती है ये, कोई एक्सेसर आएगा तो 2-3 ही देगा, कोई आएगा तो 50-60 देगा। ओके ओके हाँ। तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि 60 आया मतलब हमने काम नहीं किया है। ओके ओके हाँ हाँ हाँ। तो बट कितनी भी आई, 3 हो, 30 हो या 60 हो, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू क्लोज दैट एनसीज। ओके ओके हाँ सर। हम वो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके हम वो कॉम्प्लायंस, नॉन कॉम्प्लायंस को कॉम्प्लायंस में कन्वर्ट करेंगे। ओके? हाँ सर हाँ। हाँ। और सर कभी मुझे कभी पूछना था करके नॉन कंप्लायंस जो ये लोग बोलते हैं ये लोग लिख के देते ना क्या क्या है करके। हाँ, अच्छा ओके हाँ तो चलो। वो आपको ईमेल, प्रॉपर ईमेल होता है और ऑनलाइन होता है सारी एनसीज। ओके ओके सर हाँ। हाँ, उसके बाद कोऑर्डिनेटर चेंज, कभी कभी दीपा जा रही है एक हॉस्पिटल में, हाँ सर। दीपा जा रही है और कुछ ऐसा हुआ कि दीपा मे नॉट गो, 1-2 महीने नहीं जा सकती है, तो दीपा विल अरेंज हाँ सम हाँ ऑल्टरनेटिव। हाँ। तो इन दैट केस हॉस्पिटल विल नॉट बी फसी कि नहीं यार दीपा ही चाहिए हमें, ओके ओके हाँ सर हाँ सर। बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज होता है रिटेन करने के लिए। एम्प्लॉय बदल सकता है बट डोंट वरी, विल एंश्योर द ट्रेन्ड एम्प्लॉय विल कम टू यू। तो आप ये मत सोचो कि यही कोऑर्डिनेटर आपके पास रहेगा, कभी कभी बदल भी सकता है सर। ओके सर ओके सर। या ये जो हमें एक्सपीरियंस आया ना वही हमने एग्रीमेंट में बदल दिया है। ओके सर यस सर। एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया और डॉक्टर सेड नो नो नो, वही चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बराबर है सर। हाँ, वर्क अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस कंप्लायंस, ईच विजिट, हर विजिट के वक्त कोऑर्डिनेटर विल प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट। हाँ यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व है, एक तो है एनएबीएच अथॉरिटी, वो तो बाद में पिक्चर में आएगी। हाँ सर। अभी कंसल्टेंट है और हॉस्पिटल अथॉरिटी है। ओके सर हाँ। अभी कुछ काम कंसल्टेंट को करने हैं मतलब, और कुछ काम हॉस्पिटल को करने हैं। ओके सर हाँ। जो काम कंसल्टेंट को करने हैं वो खुद करेगा, वो डेलीगेट नहीं करेगा। ओके सर हाँ। लेकिन हॉस्पिटल को भी तो कुछ काम करने हैं, जैसे कि साइनेजेस वाले का पैसा देना है। हाँ साइनेजेस तो हम बना के देंगे, डिजाइन वगैरह बना के देंगे, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा हॉस्पिटल ने। हाँ। तो ये हो गया हॉस्पिटल का काम। तो ये हम अकाउंटेबिलिटी लिख के साइन लेके जाएंगे, सो दैट आगे आप ये नहीं कह पाओ कि आपने काम नहीं किया है। ओके सर। है ना? हाँ सर हाँ। हाँ, फोन कॉन्टैक्ट पॉलिसी, अगर कोऑर्डिनेटर समहाउ फोन पिकअप नहीं कर पा रहा है तो आप हमारे हाँ ऑल्टरनेट नंबर को फोन करो, है ना? अगर फिर भी हाँ, प्रॉब्लम हाँ। आया तो व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है वहां पे आप डाल दो, ओके सर हाँ। तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं तो आप फोन ही नहीं पिकअप कर रहे हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ना, वहां पे आप डाल दो, कुछ ऑल्टरनेटिव लोग भी होंगे जो आपका काम कर सकते हैं। ओके सर हाँ। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप टेम्पररी ग्रुप है, सर्टिफिकेशन के बाद बंद किया जाएगा।
ओके सर, हाँ। ईमेल पॉलिसी, हर महीने हम हर हॉस्पिटल को ईमेल भेजेंगे कि ये मंथ का कितना रेट था और हमने वो अचीव किया है, कितना परसेंट अचीव किया है, और जितना परसेंट अचीव नहीं हुआ है उसका रीजन क्या है, वेदर हॉस्पिटल और वेदर कंसल्टेंट और सम अदर रीजन। ठीक है, हाँ सर, हाँ। और हम ये इंश्योर करते हैं कि इसमें रीजन हमारा काम कम नहीं होना चाहिए, कि हमने काम कम किया ये रीजन कभी नहीं होना चाहिए। ओके सर, हाँ। एडिक्वेट स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाफ एडिक्वेसी। फर्स्ट डे ही हम आपको बता देंगे कि कितना स्टाफ कौन सा रिक्रूट करना है, कौन से नर्सेस आपको ज्यादा चाहिए, जीएनएम कितनी चाहिए, एएनएम कितनी चाहिए, आरएमओस कितने चाहिए, उनकी डिग्री क्या चाहिए। ओके सर, हाँ। हाँ, ये हम आपको फर्स्ट डे बता देंगे, बिकॉज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपका एनएबीएच सर्टिफिकेशन विल बी रिजेक्टेड। ओके ओके, हाँ सर। तो उसका रीजन हम नहीं होंगे फिर, हाँ सर, हाँ। क्योंकि हमने आपको डे 1 को ही बता दिया है कि इतने सारे लगेंगे। हाँ सर, हाँ। डेस्कटॉप ऑडिट वगैरह रिजोल्यूशन हम ही करेंगे पूरा का पूरा। बियॉन्ड रीच पॉलिसी, द हॉस्पिटल विच आर रेडी टू वर्क विद अस बट लोकेशन ऑफ द हॉस्पिटल इज बियॉन्ड रीच। तो यही मैंने बोला है कि टू एंड फ्रो ट्रैवल टाइम इज मोर देन 4 आवर्स, तो हम कंटिन्यूअसली 4 डेज हॉस्पिटल में रहेंगे ओके ओके सर। एंड आपको रहने का इंतजाम करना होगा। ओके ओके। हाँ, आणि हॉस्पिटल शैल पे टीए एंड डीए एज एक्चुअल बेस्ड ऑन बिल्स प्रोवाइडेड। ठीक है, हाँ सर, हाँ। अभी एक बार डेस्कटॉप ऑडिट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए, उसके बाद द बॉल गोज इनटू द एनएबीएच अथॉरिटी कोर्ट, राइट। सो हाँ सर, वहां हाँ। पे वो कब आएंगे ये हमें नहीं पता है, हमने हमारा काम कर दिया, हाँ। हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, हमने एनसीज रिजॉल्व कर दी। अब जो एक्सेसर डिलीगेट किया हुआ है, जो यहाँ पे आने वाला है ऑडिट करने के लिए, उसको टाइम है, ये ना हॉस्पिटल के हाथ में है ना आपके हाथ में है। ओके। तो बीच में क्या होता है, ये हॉस्पिटल स्टार्ट कॉलिंग यू, अरे अभी तक फोन नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं आया। हाँ 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 हाँ। तो वो उनको डे 1 को ही बता देना है, सर ये फोन वोन नहीं करना है, जब आएंगे तब कॉल आएगा आपको, जब कॉल आएगा तब आप हमें ये कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। हाँ। उसके बाद मेन ऑनसाइट ऑडिट, ऑनसाइट ऑडिट के दिन हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होगा अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो। ओके सर, हाँ। ठीक है, रिन्यूअल एएमसी, अगर आपको रिन्यूअल एएमसी है, मतलब एएमसी करनी है हमारे साथ, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यस। तो सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद एवरी 6 months we'll go, we'll find out the gap analysis and we'll keep the system online, and for that our charges are 10,000 rupees per visit, travel DA extra है। ठीक है, हाँ सर। तो ऐसी हम 3 से 4 विजिट दे सकते हैं, और जितनी विजिट चाहिए आप बुलाओ, हमें 10,000 रुपए दे दो। हाँ। तो क्या एडवांटेज होगा, जैसे कि सर्टिफिकेट आया उसके बाद आप 1.5 साल सो गए, कुछ नहीं किया, हाँ हाँ। और फिर रिन्यूअल ऑडिट आया, अगेन ऑडिट आया, तो फिर यू हैव टू पे अगेन 1 लाख 150 लाख 1.5 लाख रुपीज, बिकॉज सारा का सारा फिर से करना पड़ेगा, फिर डेटा एंड ऑल। ओके सर, हाँ। वो ना हो इसलिए 10,000 पर विजिट हर 2-3 महीने में हमें बुलाओ, वील कीप द सिस्टम लाइव। ओके ओके, हाँ सर, हाँ। ENABH to main, हाँ सर, हाँ। हाँ, तो 1 visit for 12 months before anniversary date, हाँ, every month 10,000 ओके सर। हाँ सर। तो 1 साल के बाद जैसे ही सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट आने के बाद 1 साल के बाद आप हमें बुलाओ, हर मंथ हम 10,000 रुपीज लेंगे पर विजिट, और हाँ। टीम को मेन एनएबीएच लेवल पे लेके जाएंगे। हाँ सर। ENABH to ENABH 6 महीने पहले आप हमें फोन करो, 10,000 पर विजिट पर मंथ हम लेंगे एंड आपका रिन्यूअल कर देंगे। ठीक है, ओके सर, हाँ। और कोई भी नंबर ऑफ विजिट क्रॉस हो गई, जो भी विजिट हमने दी, क्योंकि इतनी विजिट्स हम देंगे, हाँ। तो
extra charges will be 3000 INR per visit with TADA extra. ओके सर हाँ विजिट क्रॉस हो गई तो ठीक है, हाँ 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 इस पे भी हम साइन ले लेते हैं हॉस्पिटल ओनर। ये जैसे मैंने आपको समझाया हाँ सर वैसे ही आपको डॉक्टर को या फिर जो भी अथॉरिटी है हॉस्पिटल उनको समझाना है उनकी लैंग्वेज में, हाँ सर हाँ और फिर नीचे साइन लेनी है। ओके ओके सर हाँ बाद में हम उनको बोलते थे सर ये हमने समझाया था आपको। हाँ हाउ बेस्ट वी आर, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं हाउ वी आर बेस्ट। ओके, हाँ सर हाँ you can read it later on, and then ओके ओके सर extra things we have other than NABH. Okay, ओके so हाँ. we have hospital information software. Okay, यस यस हाँ, then we have mark software. Okay, mark मतलब आपको बताया मैंने कि मैनेजमेंट एक्रेडिटेशन रेगुलेटरी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इंडिया में हमारे पास है। इसमें हम जो ओके ऊपर आपने देखा यहाँ पे कि ये सारी स्टेप्स है बराबर, ये सारे रजिस्टर फॉर्म फॉर्मेट्स ट्रेनिंग मटेरियल सब है ना यहाँ पे, हाँ सर हाँ ये आइडियली हम वहां पे प्रिंट करते हैं, ओके बट हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें अगर हम डाल देंगे तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, इट इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल। ओके सर हाँ तो ट्रेनिंग भी मोबाइल पे होंगे, आपकी मीटिंग भी मोबाइल पे होगी, मैनेजमेंट क्वालिटी इंडिकेटर मैनेजमेंट सब कुछ मोबाइल पे आप कर सकते हो। हाँ सर हाँ तो पेपर नहीं लगेगा। सो वी हैव ओके एज वेल, दोनों को आपको, आपके पास ऑलरेडी हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर है, हॉस्पिटल पेशेंट मैनेजमेंट, तो हम ये हाँ, हमारे ऐप को उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड HIMS एंड मार्क। ओके हाँ हाँ सर हाँ हाँ, वी आल्सो हेल्प हॉस्पिटल्स फॉर इंश्योरेंस टाइप्स। ओके ओके हाँ सर वी हैव हॉस्पिटल स्टाफ ट्रेनिंग। ओके ओके सर हाँ हाँ, एंड अगर कोई हॉस्पिटल कहता है कि नहीं नहीं ये हमारे पास बंदा है, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रही हो, हाँ यू नो हाउ टू डू इट, बट आपको वो SOP बनाओ ये सब टाइम जाएगा बहुत, ओके हाँ तो वी गिव देम कंप्लीट बॉक्स, ओके ओके हाँ हाँ बड़ा बॉक्स जाएगा, उसमें सारे रजिस्टर्स प्री प्रिंटेड होंगे विथ हॉस्पिटल लोगो एंड ऑल, ओके ओके हाँ सारे फॉर्म्स विथ हॉस्पिटल लोगो एड्रेस एंड ऑल, सारे साइनेजेस विथ ऑल दैट साइजेस, SOPs की फाइल्स, क्वालिटी इंडिकेटर के फॉर्मेट्स, सॉफ्ट कॉपी ट्रेनिंग मटेरियल लिस्ट, सब कुछ हम आपको एक ही बॉक्स में Day 1 पे भेज देंगे। फिर ओके सर हाँ जो बंदा है केपेबल बंदा, वो इसको यूज करके सिस्टम सेट करेगा। हाँ सर तो वी चार्ज अराउंड 50,000 रुपीज प्लस GST। ओके सर So we have training app, as I told you. यस सर So these are all extra things we have. तो ये है this kind of thing, ये अगर आप याद आ जाएगी ना, आज मैं भेज दूंगा आपको ये। ओके, हेलो, हेलो सर ये मैं आप दोनों को, वीर जी, हाँ सर। हाँ तुम्हारा, आप दोनों को ये मैं भेज रहा हूं, तो इसको आप ओके सर। रट्टा मारो 10-15 बार पढ़ो समझो। ओके इसमें सर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम्म। मुझे फोन करो या व्हाट्सएप करो कि सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। हाँ सर और डाउट भी रहेगा तो पूछ सकते हैं ना सर। हाँ, डाउट है तो आप व्हाट्सएप Okay, करो sir. ना मुझे। ओके सर हाँ हाँ, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके हाँ सर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आया तो आगे, नहीं तो कुछ फायदा नहीं आगे जाके, हाँ सर हाँ बिकॉज दिस इज योर एंट्री पॉइंट। यही नॉलेज यूज करके आप एंटर करोगे हॉस्पिटल में। ओके सर हाँ ये नहीं आया तो आप एंटर ही नहीं कर पाओगे हॉस्पिटल में, बिकॉज आप कन्विंस नहीं कर पाओगे हॉस्पिटल। अच्छा तो फर्स्ट वी हैव टू बी एबल टू कन्विंस द हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल के साथ ये सिस्टम में बात करो जैसे हमने बोला है, राइट। तो वी हैव, हाँ सर वन इज कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल में आपको कंपनी के बारे में बोलना है, हाँ and you should tell them that we are the representative from the company.
ओके एंड यस हमने इतना इतना हॉस्पिटल किया है, सारा प्रेजेंटेशन में रेडी है वो, ओके हाँ सर हाँ एंड उसके बाद फिर दे विल से व्हाट आर द चार्जेस, ओके तब आपको ये प्रपोजल बाहर निकालना है, प्री प्रिंटेड प्रपोजल होगा आपके पास, फिर उनको चार्जेस बताओ, फिर उनको एग्रीमेंट बताओ, फिर उनको स्टेप्स बताओ, राइट फिर हाउ वी हाँ, आर डिफरेंट, सारा का सारा इसमें डॉक्टर बोलेगा हाँ ठीक है आई एम रेडी, कितना लोगे, तो उनको चार्जेस सर इसमें जो भी निगोशिएशन होगा उसका चार्ज लिखने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखो है ना कि ठीक है हमारी हाँ, स्टैंडर्ड हाँ। तो 150 है, लेकिन डॉक्टर इज सेइंग नो नो हाँ, थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो चलो सर 20 के डिस्काउंट लेके आपको 110 120 में हम कर देंगे, तो दैट Okay, कॉस्ट विल okay, कम हाँ। ओवर हियर, ओके द मोमेंट यू विल हाँ, पुट sir. कॉस्ट हियर you can go at 20% advance ओके and then your ओके सर your work will start as we have mentioned over here, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, हाँ सर ठीक है हाँ सर हाँ डन। सो ये मैं आपको दोनों को भेज रहा हूँ, ये और कंपनी का लेटेस्ट प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ, ठीक है। सो अब हम ओके सर फिर से कनेक्ट होंगे कल एट योर ओन फिजिबल टाइम, टुमारो व्हेन इट इज फिजिबल आपको दीपा। सर कल भी मैं फ्री हूँ, परसों भी मैं फ्री हूँ, तो कौन सा हाँ। टाइम आप लोग देंगे? मैं हूँ। तो कल 2 बजे सेम 2 o'clock। ओके सर हाँ हाँ वीर जी उद्या 2 वाजता हाँ. ठीक आहे ना? हो सर चालेल चालेल चालेल. चालेल हा मला तर ऍक्च्युअली सगळं माहित आहे, हा फक्त मी रिव्ह्यू करत होतो. हो हो येस येस हा मग फक्त रिव्ह्यू करत होतो. येस तुम्हाला माहितच आहे सगळं, ओके हो सगळं माहित आहे. हो, या हो, या हो. या हा चलो हा ठीक है दीपा, थैंक यू हाँ, वीर जी, thank you. बाय 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 बाय। हाँ थैंक यू Thank you. सर, थैंक यू सर। Bye.